Hello everyone, मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है and today we are going to discuss one of the landmark case related to culpable homicide and murder. The name of the judgment is Virsha Singh versus State of Punjab. The date of pronouncement of judgment is 11th March 1958. आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ ईयर याद रखना है 1958. The decision is considered as landmark for two obvious reasons. First one is quorum. The judgment comprises three judges bench. Justice Vivian Bose, Saeed Zafar Imam, and P.V. Gajendra Gadkar. In criminal law, three-judge bench decision is a big deal. The second reason for considering it as a landmark decision is that the year of the judgment is 1958, but even in 2025, it holds its persuasive value and binding upon subordinate court. आपको तीनों जजेस का नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ऑथर का याद रखना है, जस्टिस विवियन बोस. इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सबने विरसा सिंह ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट मेरा एम होगा कि एटलीस्ट कम टाइम में जो डेप्थ दी जा सके इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो भी प्रोनाउंस किया गया था, स्पेशली रिलेट्स टू द एप्लीकेबिलिटी पार्ट, क्योंकि हम रट तो लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, और इवन जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम आंसर भी दे पाते हैं, बट क्या उस डेप्थ में पढ़ते हैं या जिस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें पढ़ते हैं कि नहीं, वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से पता चलेगा. So the entire video is divided into three parts. The first part deals with prerequisites that will be required to understand the judgment itself. The second part deals with the case law. The third part will deal with the critical analysis of the judgment. So let us start with the first part. As we all know that in 1958, IPC was enforced, and therefore throughout the judgment, section 299 and 300 is used. However, in 2025, BNS force में है, and therefore we will use section 100 and 101 जब भी आंसर लिख रहे होंगे. So मेरा यहाँ पे ये एम नहीं होगा कि मैं डिफरेंस बताऊँ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में फर्स्ट पार्ट में. My aim will be limited to only two things. The first one is कि जब भी कोई केस आता है तो जनरली कोर्ट उसको अप्रोच कैसे करता है, एंड द सेकेंड पार्ट कि जो वहाँ पे कंफ्यूजन है विरसा सिंह में वो यहाँ से कैसे ओरिजिनेट हो रही है इस प्रोविजन से. तो सिर्फ दो चीज का डिस्कशन है. व्हेन इट कम्स टू अप्रोच, वी विल रिफर टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ आर पुनैया विच वॉज डिसाइडेड बाई टू जजेस बेंच. और जब मैं बोल रहा हूँ अप्रोच की बात, तो आर पुनैया ये मैं सोचिएगा पहले हो गया था. आर पुनैया 1976 में प्रोनाउंस किया गया था इसके बाद, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अप्रोच समझने पे थोड़ी आसानी होती है विरसा सिंह को समझने पे. तो इन आर पुनैया, Justice Sarkaria provided three-stage inquiry to decide whether the particular offense is culpable homicide not amounting to murder or murder. So in the first stage, we have to decide whoever causes death by doing an act. This particular limb, there is an act, there is death, and there is causal connection between death and act. If this stage is satisfied, then we move to the second stage, जहाँ पे हम देखेंगे कि whether that particular act is committed with the intention of causing death or intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. अगर इन तीनों मेंसिया में से किसी एक में फॉल कर रहा है, only then we will move to the third stage, and the third stage is itself divided into two parts. पहले पार्ट में हम ये देखते हैं कि if that particular case falls in any of the four clauses that are provided in section 101 definition of murder. अगर first part satisfied हो गया, then court will presume that the offense is murder. Now the onus is on the defendant to prove that his particular case falls under the partial exception that are given under section 101 itself. Therefore, firstly we will see फोर क्लॉसेज में है कि नहीं है, एंड देन इट इज ऑन द डिपेंडेंट कि वो बताए कि वो जो 5 पार्शियल एक्सेप्शन दिए गए हैं उसका केस उसमें फॉलो होता है. अभी जब स्टेज 1 में हमने देखा एक्ट, डेथ और कॉजल कनेक्शन. जब भी कॉजल कनेक्शन की बात करते हैं तो हमको दो चीजें याद रखनी है कि कॉजल कनेक्शन का मतलब कॉजा, कॉजेंस या कॉजा सिन क्वानन. बेसिकली
कॉजा सिनक्वा नॉन वो पर्टिकुलर एक्ट है जिसकी वजह से पूरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, और कॉजा कॉजेंस वो पर्टिकुलर फैक्टर है जो अल्टीमेटली डोमिनेंट था और जिसकी वजह से एक्चुअल में डेथ हुई है। तो कॉजल कनेक्शन में कॉजा कॉजेंस आता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। आपने किसी को नाइफ से अटैक किया, सपोज करिए उसके पीठ पे या फिर उसके चेस्ट पे चोट लगी। अब एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस जब ले जा रहा था तो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, और उसका एक्सीडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि उसका ड्राइवर जो है दारू पी रखा था ब्रेकअप की वजह से। अब दुखी था, दारू पी लिया, वो तो ठीक है, बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि एक्चुअल में नाइफ की वजह से डेथ नहीं हुई थी, बट डेथ हुई थी एक्सीडेंट की में जो चोट लगी थी उसकी वजह से। तो क्या आप लाइबल करोगे उस डेथ के लिए उस पर्सन को जिसने नाइफ से मारा था? जबकि अगर उसने नाइफ से नहीं मारा होता तो आपको जरूरत नहीं पड़ती एम्बुलेंस बुलाने की, एम्बुलेंस में नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता तो मरता नहीं। तो इसमें चाकू मारना कॉजा सिनक्वा नॉन है, बट एक्चुअल में जो डेथ है कॉजा कॉजेंस, जो डोमिनेंट प्रोक्सीमेट कॉज है वो एक्सीडेंट। देयरफॉर द पर्सन कैन नॉट बी मेक लाइबल अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, क्योंकि पहला ही स्टेज नहीं सेटिस्फाई हो रहा। अगर पहला पार्ट सेटिस्फाई हो गया तो फिर इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें भी जो ये मेंटल एलिमेंट है ये दो पार्ट से है, जो मैंने कहा था ना कि हम पहले स्टेज देखेंगे, अब हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं प्रीरेक्विजिट का, कि जो मेंटल एलिमेंट है वो दो जगह पे एसोसिएट हो सकता है जो मेंस रिया है। पहला कि आप बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहते हैं, आपका मेंटल एलिमेंट सिर्फ बॉडीली इंजरी तक है, जो कि यहाँ पे है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। अब वो बॉडीली इंजरी अपने आप में लाइकली टू कॉज डेथ का है, वो बात अलग है। या फिर आपका मेंटल एलिमेंट सिर्फ बॉडीली इंजरी तक का नहीं है, बट इसका जो एक्चुअल अफेक्ट है दैट इज डेथ। आपका मेंटल एलिमेंट डेथ तक है, तो बेसिकली आपका मेंटल एलिमेंट है डेथ भी कॉज हो जाए, जो कि फर्स्टली में है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो आप ये समझिए मेंटल एलिमेंट दो जगह यूज होगा, पहला कि बॉडीली इंजरी करने तक का, फिर उसके आगे भी एक पार्ट है कि वो बॉडीली इंजरी जो है जो डेथ कॉज कर रही है, क्या आप अफेक्ट तक आपका मेंटल एलिमेंट है। तो ये दोनों चीज देखनी होगी कि कैसे चलता है। हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए सिर्फ सी पार्ट, सी क्लॉज इंपॉर्टेंट है, बट आप पॉज करके पूरा जो है ए बी सी डी सारे पढ़ सकते हैं। आई एम रीडिंग ओनली द सी क्लॉज। इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। अब पहला चीज यहाँ पे ये है कि बॉडीली इंजरी का इंटेंशन होना चाहिए, तो बॉडीली इंजरी अगर किसी केस में इन्वॉल्व है तब सी का आएगा इन्वॉल्वमेंट। दूसरा चीज की जो बॉडीली इंजरी है, जो जिसका इंटेंशन था कि ये बॉडीली इंजरी हो, क्या वो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि डेथ हो जाए। अगर ये चीज भी सेटिस्फाई हो रही है तब आप लायबल हो गए सेक्शन 101 के सी में। अब हम लोग केस लॉ पे आते हैं सीधे। हर एक ट्रिवियल फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दो आई हैव प्रोवाइडेड दिस इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। सो इंसिडेंट अकर्ड ऑन 13 जुलाई 1955 अराउंड 8 PM। नहीं याद करना है आपको। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द बिरसा सिंह वाज द मेन अक्यूज्ड और खेम सिंह वाज द विक्टिम। बिरसा सिंह ने स्पीयर भाले का यूज किया और सिर्फ एक अटैक किया, जिसकी वजह से सिर्फ एक बॉडीली इंजरी आई। अब ये डिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी की। हर केस में जहाँ पे डेथ हुआ है वहाँ पे एक इंजरी रिपोर्ट बनाई जाती है जो सिर्फ ये बताती है किस पार्ट में कहाँ कहाँ कैसी चोट लगी है। सो द इंजरी वॉज 2.5 इंचेस डीप और उसमें इंटेस्टाइन पे रप्चर हुआ था। अब इस पर्टिकुलर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि उसने एब्डोमेन में ही मारा था जो है बिरसा सिंह ने, तो वो भी कंफर्म है कि हाँ एब्डोमिनल वॉल में लगा, मल्टीपल कट्स हुए और इंटेस्टाइन में वगैरह, और खेम सिंह की नेक्स्ट डे डेथ हो गई है। अब आप ये देखिए कि जब भी एक बॉडीली इंजरी होती है it is always difficult to analyze or assess whether the injury was intentional or accidental। अगर एक से ज़्यादा तो हमको पता है कि 3 बार किसी ने मारा है तो 3 बार एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपसे एक ही बार हो सकता है कि एक ही बार गलती से लग गया, 3 बार गलती से नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक बार जब भी होता है तो हमेशा कंफ्यूजन होती है कोर्ट को, और इसी वजह से कि इतना जो
जो पर्टिकुलर वेपन यूज हुआ था वो लीथल था, जिस पार्ट में अटैक हुआ वो भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट था, फिर भी हम इसको फर्स्टली में जो है नहीं डाल रहे हैं कि देयर वॉज इंटेंशन टू कॉज डेथ, क्योंकि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बार अगर इंटेंशन होता तो वो 3-4 बार मारता। वो इसलिए नहीं छोड़ता कि चलो एक बार मार के हम चले जा रहे हैं अभी दूसरे दिन मर जाए, क्योंकि दूसरे दिन तक बच भी सकता था। तो इंटेंशन टू कॉज डेथ, और हमेशा फर्स्टली में जाएगा, सेकेंडली में जाएगा, थर्डली में जाएगा, वो इन्फेरेंस निकालना पड़ेगा फैक्ट से। अगर इसी पर्टिकुलर फैक्ट में ये चीज़ भी होती पॉसिबिलिटी कि एक प्रायर कॉन्स्पिरेसी हुई है, अगर पहले की कोई कॉन्स्पिरेसी है उसको प्रूव कर दे रहा है कोई, और सिर्फ यही फिर होता कि एक ही बार भाला मारा है, इसी तरह का वुंड हुआ है, तो उस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव होने की वजह से ये फर्स्टली में चला जाता, क्योंकि इंटेंशन है आपने इस तरीके से मारा है, या फिर कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गया, मोटिव प्रूव हो गया है कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए कर रहे थे, और फिर यही सेम फैक्ट है तो फर्स्टली में चला जाता। तो इवन सेम केस अगर उसका इंटायर फैक्ट जो है चेंज करते हैं, तो सिर्फ वूंड से आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे कि फर्स्टली में जाएगा, सेकेंडली में जाएगा, थर्डली में जाएगा। आपको इंटायर फैक्ट देखना पड़ेगा और तब एसेस करना पड़ेगा क्या इंटेंशन हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, मोटिव नहीं थी, सिर्फ एक झगड़ा हुआ जिसमें इस तरह का स्टार्ट हुआ, इस तरह का बॉडली इंजरी कॉज किया एक्यूज ने। अब ट्रायल कोर्ट ने, हम सिर्फ मेन एक्यूज की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि किसको कहाँ पे एक्विट कर दिया गया, कहाँ पे किस ऑफेंस के लिए डाला गया था, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर एनालिसिस। तो ट्रायल कोर्ट ने को एक्यूज को मर्डर के लिए लायबल किया सेक्शन 302 में। सेशन जज फाउंड ट्रायल कोर्ट और सेशन जज अलग नहीं है, जब भी मर्डर का ऑफेंस होता है ट्रायल जज जो होता है, ट्रायल कोर्ट जो होती है वो सेशंस कोर्ट ही होती है। तो उसने इनको ये एक्सेप्ट किया कि दो देयर वॉज नो इंटेंशन टू किल बट अप्लाइड सेक्शन 330ली। उन्होंने कहा आपका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, बट ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने वही टेस्ट लगाया जो आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस में बताया था कि अगर आपका इंटेंशन है किसी बॉडी इंजरी को प्रूव करने का, बॉडी इंजरी कॉज करने का, वहां पे हम देख लेंगे, फिर उसके आगे हम सिर्फ ये देखेंगे क्या वो सफिशियंट है ऑर्डिनरी कोर्स में कि नहीं। तो सेशन जज ने वही टेस्ट लगाया, सेशन जज हुआ हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी इनको कन्विक्ट किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लिमिटेड लीव दिया गया अपील में। लिमिटेड लीव का मतलब क्या है, आप फैक्ट्स पे डिस्कशन नहीं करोगे, फैक्ट्स जो ऑलरेडी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में बताया गया हम सिर्फ उसी को मानेंगे सही है। आप उस फैक्ट्स पे आर्ग्यू ना करके उस फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है या लॉ को कैसे उस फैक्ट पे अप्लाई करना है, सिर्फ इसका आर्ग्यूमेंट दोगे। तो डिफेंस का आर्ग्यूमेंट ये था कि द पर्सन इज नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 101, his offense is basically culpable homicide not amounting to murder। और आर्ग्यूमेंट क्या था, नो इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट एन इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, प्रोसिक्यूशन रिलाइड ऑन ऑब्जेक्टिव सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ इंजरी। अपील जो है सुनी गई। अब इश्यूज जो फ्रेम हुए थे बेसिकली एग्जैक्ट इश्यूज नहीं थे, ये इम्प्लिसिट थे जो डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहला तो ये कि क्या सेक्शन 330ली में जाएगा कि नहीं, 101 की सी में जाएगा कि नहीं। सेकंड ये था क्या प्रोसिक्यूशन को ये सिर्फ प्रूव करना है कि जो इंजरी है वो इंटेंशनल थी, या ये भी उसको साथ में प्रूव करना है कि इंजरी तो इंटेंशनल थी लेकिन साथ में एक सब्जेक्टिव नॉलेज था कि जो इंजरी कॉज कर रहे हैं वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने का। इसी को एक्सप्लेन करता है थर्ड पार्ट भी कि क्या इंटेंशन हम दोनों लिम्ब पे लगाएंगे, कि जो इंजरी एक्चुअल में इन्फ्लिक्ट हुई है उसका भी मेंटल एलिमेंट था, प्लस जो उसका अफेक्ट है सफिशिएंसी टू कॉज डेथ उसका भी मेंटल एलिमेंट है। ये तीन इश्यूज थे। अब इस पे रेशियो डेसिडेंडी की जब बात करें, अगर आप डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पूरा जजमेंट आप नहीं लिख सकते, सिर्फ ये 2 लाइन लिख दीजिएगा। सेक्शन 330ली क्रिएट्स 2 स्टेज एनालिसिस, सब्जेक्टिव इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव सफिशिएंसी। इंटेंशन रिलेट्स ओनली टू इन्फ्लिक्टिंग अ पर्टिकुलर इंजरी नॉट टू इट्स डिग्री ऑफ फैटेलिटी। लेकिन अगर जजमेंट थर्डली से रिलेटेड है, सी क्लॉज से रिलेटेड है, तो आपको ये टेस्ट भी लिखना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन को क्या क्या प्रूव करना है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ अ बॉडली इंजरी, इट इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब है सपोज देयर इज एन इंजरी ऑन योर राइट हैंड, इट इज 2 इंचेस डीप। तो ये जो राइट हैंड में है, जो 2 इंच का डेप्थ है, ये दिल्ली में हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट बनेगी तो उसमें भी यही बोला जाएगा, अगर वो चेन्नई में भी बनेगी तो भी वही बोला जाएगा। आपने एमबीबीएस इंडिया से किया है तो भी आप यही बोलोगे राइट हैंड में 2 इंच गहरा जो है चोट है। अगर आपने यूएस से किया है तो वहाँ का भी डॉक्टर यही बोलेगा इंजरी राइट हैंड में है और 2 इंच डीप है। तो ये चीज़ इस वजह से ऑब्जेक्टिव है कि चाहे कोई भी डॉक्टर कर रहा हो सेम कंक्लूजन पे पहुंचेगा। देन अगेन नेचर ऑफ द इंजरी,
नेचर ऑफ द इंजरी का मतलब बेसिकली फर्स्ट पार्ट में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ बॉडी इंजरी थी कि इंजरी है। नेचर वाला पार्ट की आपके राइट हैंड पे है, आपके 2 इंच गहरा है, उसमें कितना ब्लड निकला है, कौन सी आर्टरी कट हुई है, ये सब जो है सेकंड पार्ट में डिसाइड होगा। अगेन इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ का डॉक्टर कहेगा तो भी वो 2 इंच ही बोलेगा, मुंबई का होगा वो भी 2 इंच बोलेगा, चेन्नई का होगा वो भी 2 इंच का बोलेगा। therefore it's an objective test। intention to inflict that particular injury it is a subjective test। ये सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ने वही इंजरी कॉज की है आपके राइट हैंड पे 2 इंच की, बट हो सकता है उसका इंटेंशन यहाँ पे नहीं था, उसका इंटेंशन शोल्डर पे हो सकता है, उसका इंटेंशन पीठ पे हो सकता है, सीने पे हो सकता है, बट यहाँ पे लग गया। तो सच में यहाँ करना चाहता था कि नहीं करना चाहता, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं सीने पे मारना चाहता था, गलती से यहाँ लग गया, मेरा अलग केस है। मेरी नज़र बहुत अच्छी है, मैं वहीं करना चाहता और एग्जैक्ट वहीं पे कर दिया है, तो अलग चीज़ है। तो सब्जेक्टिव होता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वही इंजरी आप कैसे करना चाहते थे, वहीं करना चाहते थे, उसी डेप्थ में करना चाहते थे। हम पूरी जान से कर रहे हैं, हम पतले हैं, कम डेप्थ में जाएगा। कोई और बहुत ताकतवर है, वो बहुत हल्के से कोशिश किया, उतने उससे ज़्यादा डेप्थ में चला गया। तो देयर इज सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्रॉस। दैट थर्ड केस, इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट द इंजरी, दैट पर्टिकुलर इंजरी। अगर ये हो गया कि राइट हैंड में ही 2 इंच डेप्थ में इंटेंशन थी डेथ कॉज करने का, तो फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं है। फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंजरी ऑब्जेक्टिवली सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। मतलब कि अब ये जो इंजरी है, क्या ये सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज करने का? ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है क्या मतलब है कि एक नॉर्मल आदमी के ऊपर, जो बीमार नहीं है, जो कमजोर नहीं है, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसके ऊपर यही इंजरी हुई है, तो क्या उसकी डेथ हो जाती है? अब वो इंडियन है, उसने कहा, दिल्ली में हॉस्पिटल में आप गए और दिल्ली के एक डॉक्टर ने कहा हाँ ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ हो जाएगी। अब आपको अगर एक्विट कराना है अपने क्लाइंट को, तो आप अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि मुंबई में एक डॉक्टर है जो कह रहा है कि नहीं ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होगा, चेन्नई का एक डॉक्टर वो भी कह रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होगा, तो फिर ये फोर्थ वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर डॉक्टर बोले कि हाँ ऑर्डिनरी कोर्स में हो जाएगा। तो अगर डाइवर्सिटी है अलग अलग डॉक्टर में, तो ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, आप थर्डली में कन्विक्ट नहीं होगे। बट अगर हर डॉक्टर यहाँ का, यूएस का, मुंबई का, सब लोग का एक जनरल ओपिनियन है, अब ये नहीं कि आप किसी पैसे देके खिला के कह दो कि अरे भैया ये कर दो, नहीं, बट एक न्यूट्रल इंसान, इसी वजह से न्यूट्रलिटी के लिए हम लोग सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उनका यूज करते हैं। इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्टिकुलर इंजरी, द इंजरी दैट वाज इन्फ्लिक्टेड was sufficient in the ordinary course of nature to cause death, then these 4 tests will be satisfied and the person will be liable under section 300 thirdly of Indian Penal Code and 101C of IPC। यहीं पे खत्म हो जाता है पूरा जजमेंट। बट अब थर्ड पार्ट का कि क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का या कुछ इसमें एनालिसिस का पार्ट है या कुछ करने का, मैंने बाकी भी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो कैसे किया जाएगा ये आप टेलीग्राम पे ले सकते हो, ये पर्टिकुलर पीडीएफ। बट अब थर्ड पार्ट आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पे है, क्योंकि इसमें पूरा जजमेंट सही आज भी परसुएसिव वैल्यू है। बट यहाँ पे इशू क्या है कि प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो दिया गया है, वंस इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट दैट वेरी इंजरी इज प्रूव, द रेस्ट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। द सीरियसनेस ऑफ इंजरी इज इररेलेवेंट टू मेंटल एलिमेंट, इट इज रेलेवेंट ओनली टू द फोर्थ इंग्रेडिएंट। कि आप सीरियस इंजरी करना चाहते थे वो इररेलेवेंट है, वो सीरियस है कि नहीं सीरियस है वो सिर्फ जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, जो डॉक्टर होगा वो डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। तो ये इनका था। बट कई लोग, कई एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं ये जो प्योरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसकी जगह पे होना चाहिए क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्यों है? क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि ये पर्टिकुलर बॉडी इंजरी कॉज की है, बल्कि साथ में ये होनी चाहिए ये सफिशियंट है, मतलब मेंटली ये उस बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार इसकी वजह से डेथ भी हो सकती थी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 99% केसेस में तो ये टेस्ट सही होगा, बट एक बहुत कम संख्या में लोग हैं जो हो सकता है माइनर इंजरी ही कॉज करना चाहते हों, बट एक्चुअल में उसकी वजह से जो है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में कोई माइनर इंजरी ही कॉज करना चाहता था, बट वो सफिशियंट हो गया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे इनर कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कोई इंजरी है जो माइनर है
तो वो सफिशिएंट कैसे हो सकती है ऑर्डिनरी फोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए? और अगर वो सफिशिएंट है तो माइनर नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। जब हम माइनर और मेजर की बात करते हैं तो माइनर में क्या होता है कि आपने वेपन कैसा यूज किया, आपने अगर बंदूक यूज की है, नाइफ यूज किया है, तलवार यूज की है, दे आर द लीथल वेपन्स। बट अगर आपने कोई ऐसा ब्लेड यूज किया है तो उनके कंपैरिजन में उतना वो नहीं है। आपने किस जगह पे अटैक किया, किस बॉडी पार्ट पे, आपने हार्ट पे, सर पे, इन जगह किया है, तो ये एब्डोमेन पे, तो ये सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं। बट आपने अगर थाई पे अटैक किया है तो जनरली माना जाता है कि वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी पार्ट नहीं है। आपने किस डेप्थ में किया है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 2.5 इंचेस का डीप वूंड था। अगर इंच को हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो लगभग 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो लगभग आप समझिए कि 5 सेंटीमीटर का डेप्थ था उस वूंड में, लेकिन किसी ने 1-2 सेंटीमीटर ही डेप्थ किया है, तो जनरली उसका मेंटल एलिमेंट इससे ऐसा होता है यार माइनर ही करना चाहता था। बट प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करिए इसी केस में थाई पे एक आर्टरी जाती है, लॉन्गेस्ट आर्टरी है वो बॉडी पार्ट की, जो बहुत ज़्यादा फोर्स से जाती है, और वो थाई के 2 सेंटीमीटर के अंदर ही होती है। अब वो अपर थाई में होती है या लोअर में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट आप सोचिए किसी ने ब्लेड से मारा, उसको पता भी नहीं है, और वो ये पर्टिकुलर आर्टरी कट जाती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लड ड्रेन होता है, इससे डेथ हो सकती है। तो ये सिर्फ लक की बात है कि एक ने ब्लेड मारा उस पार्ट में, वो आर्टरी नहीं कटी और वो ग्रीवियस हर्ट में जाके लाइबल हुआ। दूसरे ने मारा और उसको पता नहीं था और ये इसी आर्टरी को कट कर गई, तो वो जो है मर्डर के लिए लाइबल हो रहा है। अब बात ये है कि आप अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर देखेंगे और मर्डर देखेंगे, तो जो मर्डर का मिनिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो एक्चुअल में मैक्सिमम पनिशमेंट है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का। इस वजह से जैसे इस पर्टिकुलर बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ओपिनियन दिया वो ये था कि इन दोनों के बीच में नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर के बीच में डिफरेंस इस चीज़ पे है कि जो एक्ट है वो कितना प्रोबेबल करता है डेथ को। जहाँ जिस जो एक्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा डेथ की, उसका चांसेस है कि मर्डर में आने का। बट जो लोग ये मानते हैं कि क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि मैं भी मानता हूँ, तो उसमें ये है कि जो डिफरेंस है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में वो इस चीज़ का नहीं है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है डेथ कॉज करने की, बल्कि इस चीज़ पे है कि क्या मेंटल एलिमेंट है एसोसिएटेड जो चाहता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ डेथ हो। अगर आपका मेंटल एलिमेंट ऐसा है कि ज़्यादा डेथ कॉज करना चाहता है तो आप मर्डर में होगे। अगर आपका मेंटल एलिमेंट ऐसा है जो चाहता है कि मर्डर हो भी सकता है फिर भी कर रहा है, तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में होगा। तो जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है 100 और 101 में, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ नहीं है बल्कि मेंटल एलिमेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो जो क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, उनका ही मानना ये है कि कोर्ट को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो बॉडीली इंजरी जो हुई है वो इंटेंडेड थी कि नहीं थी, पर साथ में ये भी देखना चाहिए क्या वो सीरियस इंजरी कॉज करने का इंटेंशन था। तो बेसिकली अगर जान में किसी ने ब्लेड से मारा है तो भले ही बाद में पता चले कि आर्टरी जो कटी है ये नॉर्मली डेथ कॉज कर सकती है, बट कोर्ट को मर्डर के लिए उनको लाइबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लक की बात है कि वो आर्टरी कट गई है। प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो लाइबल हो जाएगा मर्डर के लिए। तो उनको ये देखना कि यार इंटेंशन सीरियस इंजरी का नहीं था, तो भले ही सेकंड लिम्ब में वो फॉल कर रहा है, लेकिन क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे कि अगर माइनर इंजरी चाहता था और वो ऐसा इंजरी निकल गई कि जो डेथ कॉज कर सकती है, तो उसको लाइबल ना किया जाए। तो ये बेसिकली मैंने इसका भी बना रखा है कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंजरी इंटेंडेड वर्सेस इंजरी इन्फ्लिक्टेड। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि एक्चुअल में क्या होता कि क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही सजेस्ट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, बट चूंकि उसने लिमिटेड ग्राउंड लिया, उसने बोला कि हम ये देखेंगे कि आप सीने पे वार करना चाहते थे या पीठ पे वार करना चाहते थे। बट आगे उसने बोला कि लेकिन हम एकदम माइन्यूट डिटेल में नहीं देखेंगे, अगर ये प्रूव होगा आप सीने में करना चाहते थे, हम ये नहीं देखेंगे कि आप 3 इंच का करना चाहते थे या 2 इंच का करना चाहते थे। और ये बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि 2 इंच 3 इंच का डिफरेंस हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बट साथ में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि अगर किसी ऐसे पार्ट में या ऐसे वेपन से इस तरीके से जा रहा है तो थोड़ा डिस्क्रिशन होना चाहिए कोर्ट के पास कि वो डेविएट हो सके इस प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट से। और इस याद रखिए कि लॉ वैक्यूम में नहीं होता है, सोसाइटी में होता है। अगर ये प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये बाइंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे,
और सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर उसको पता भी रहेगा कि यार माइनर इंजरी करना चाहता था, वो डेविएट नहीं हो सकता, उसको डिसीजन देना पड़ेगा। बट अगर वो इंसान जो एक्यूज है वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं वो अपील करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सके, जहाँ पे कोर्ट अपना आर्टिकल 142 का पावर लगा सके कि नहीं इसमें हम एक्यूज को जो है एक्विट कर रहे हैं, या फिर वो जो है अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर सके। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के सबके पैसे नहीं होते हैं, तो इस वजह से क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टेस्ट को कई लोग प्रमोट करते हैं। अगर आप ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप ये क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, और इससे डेफिनेटली थोड़े मार्क्स तो आपके जरूर बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो लोग का है, जो लोग क्वालिफाइड, तो वो कहते हैं कि आप तभी लाइबल करोगे जब ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। ही इंटेंडेड टू कॉज एन इंजरी दैट ही न्यू वाज सीरियस, और ही वाज इनडिफरेंट टू द पॉसिबिलिटी दैट द एक्ट कुड कॉज डेथ। कि ऐसा वेपन लेके कि कोई डर नहीं है, कैसे भी मार रहे हैं, तो इनडिफरेंट एटीट्यूड, या फिर ऐसा कि उनको पता हो कि ये सीरियस है, तो जब भी लीथल वेपन होगा, जब भी आपका सेंसिटिव एरिया होगा, तो उनको ऑलरेडी पता होता है। बट कई बार पैर में कुछ ऐसे आर्टरीज होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उन सब पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पर्टिकुलर केस। थैंक यू।